Hello, class. Good morning. Welcome to the second class of accounts. The second class of accounts for CA Foundation. फर्स्ट क्लास में हम लोग जो किए उसका एक बार क्विकली रिकैप करेंगे. उसके बाद आज वाला क्लास हम लोग शुरू करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्लास में क्या क्या किए थे मैं एक बार उसको रिकैप करना चाहता हूँ. आई वांट टू रिकैप द सेम and then I want to start with today's class. Okay, so on the first class, what we had done, if you recall, I told you we will do 4 to 5 basic concepts classes of accounts. तब जाके accounts का जो बेस है वो आपका तैयार होगा. उसके बाद जाके आगे अपने accounts का further chapters जो है वो करेंगे. Accounting, this is paper 1 in CA Foundation. Paper 1 in CA Foundation, and इसमें we have started with the basic concepts, and basic concepts is we've started as a part of chapter 1 का unit 1. chapter 1 का unit 1. chapter 1 का unit 1 का नाम कुछ और ही था. नाम क्या था एक बार देख लेते हैं. नाम था सर पेपर का नाम क्या था? पेपर का नाम भी अकाउंट्स नहीं है. पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, and the name of the chapter was procedure of accounting. Procedure of accounting, theoretical framework, meaning and scope of accounting. So we were doing chapter 1 जो CA फाउंडेशन का बुक में chapter 1 है. उसका नाम है theoretical framework. theoretical framework and theoretical framework में we had done unit 1 जो कि है meaning and scope of accounting. meaning and scope of accounting. Okay, yeah, paper ka naam is not accounting. Someone said, sir, principles and practices of accounting. The name of the paper is principles and practices of accounting. Practice. Okay, what are we doing? CS और CMA फाउंडेशन वालों का भी ये बेस सेम है. हाँ, तो CA हो, CS हो, CMA हो, तीनों का ही ये बेस जो है ये सेम है कोई भी पढ़ाई में. मैं जो बोल दिया लास्ट क्लास में, I had said one more thing that was very important and crucial. All these things which we are going to learn today are or were learned by us in previously in class 11. क्लास 11 में हम लोग ये सब देखे थे. ऐसा नहीं है क्लास 11 में नहीं देखे थे. ठीक है, ओके. तो दिस वाज आवर फर्स्ट थिंग. now just a moment. Okay, so on the first class I told you a few questions. First was, what is accounting? अकाउंटिंग है क्या? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे तो अकाउंटिंग है क्या जानना पड़ेगा. ओके, अकाउंटिंग क्या है? इसका आंसर मैं बोला था कि अकाउंटिंग इज systematically recording, summarizing, classifying, analyzing, communicating, and reporting of transactions. And then we took up के transactions क्या है. Then we took up transactions क्या है, और वहां पे हम लोग सीखे थे कि transactions are economic events which changes the financial position of an entity. All transactions are events, but all events are not
transactions. Then I said what is bookkeeping. Bookkeeping accounts का छोटा भाई है ऐसे बोला था, और बोला था record making phase of accounting is known as bookkeeping. Bookkeeping and accounting का difference किए थे. उसके बाद अपने दो systems of accounting होते हैं सीखे थे. एक का नाम था double entry system, दूसरे का नाम था single entry system. And I explained to you double entry system. डबल एंट्री सिस्टम जो है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स है. एंड डबल एंट्री प्रिंसिपल जो क्या स्टेट करता है वो भी बोला था. और सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में फर्क बोला था कि डबल एंट्री इज साइंटिफिक, दैट्स व्हाई इट्स पॉपुलर. सिंगल एंट्री इज अनसाइंटिफिक, दैट्स व्हाई इट्स अनपॉपुलर. डबल एंट्री टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, hence, and systems and knowledge, and single entry does not take so much of pain. And of course double entry is complete and single entry is incomplete. And then I said ये जो ग्लोबली दो तरीके से अकाउंट किया जा सकता है, तो डबल एंट्री का तरीका क्या है. मैं इसमें आप लोग को बोला था कि डबल एंट्री बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होता है, दो साइड होता है. एक हम लोग कुछ मिलते हैं हम लोग को, और कुछ हम लोग खोते हैं. तो जो हम लोग को मिलता है ट्रांजैक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट. The receiving aspect of a transaction is debit, and the giving aspect of a transaction is credit. And in all transactions, if we record, all debits must be equal to all credits, because in a single transaction, debit is equal to credit, and that is the panda of double entry principle. And double entry principle के बाद मैं आप लोग को और आगे नहीं पढ़ाया था. आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो क्या क्या है मैं थोड़ा बता दूं. डबल एंट्री cycle. Then I'll talk about single entry in short, and then I will cover from book a few topics. याद करो बुक में मैं दिखा दिया था लास्ट क्लास की बुक में क्या क्या है, अपने क्या क्या कवर कर चुके हैं, और आप लोग को कुछ होमवर्क दिया था. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैं बोला था हो गया था. उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग कर लिया था. फिर अपने एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस, ये मैं बोला था खुद से पढ़ सकते हो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग टुडे वी विल डू आफ्टर डूइंग बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग. डिफरेंस हम लोग कर लिए थे. एंड सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. branches of accounting and users of accounting. Relationship of accounting with other disciplines मैं बोला था homework. Accounting and economics, accounting and statistics का क्या relation है, ये homework में करने के लिए बोला था. Okay sir. Accounting and law and limitations of accounting भी homework था. Role of CA last था. और उसके बाद मैं बोला था चैप्टर खत्म. ठीक है. तो अपने आज डबल एंट्री साइकिल मैं बोलूंगा. ये बुक में नहीं था, ये बुक में बाद में है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ. डबल एंट्री साइकिल पढ़ने के बाद मैं सिंगल एंट्री क्या है शॉर्ट में बोलूंगा. दिस इज आउट ऑफ बुक. लेटर ऑन इन बुक यू विल फाइंड इन यूनिट 2 and 3. एंड लास्टली आई विल डू ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. दैट इज टुडेज वर्क. Okay, so these 4 topics once explained, we will be off with today's class. In today's class I will show you these 4 topics. Okay sir. Okay, now firstly double entry cycle क्या होता है सर. डबल एंट्री साइकिल क्या होता है मैं एक बार आराम से दिखाऊंगा. बहुत लोग का 11-12 में ये पता है, बहुत लोग पहले से जानकारी रखता है, तो दोबारा सीखने में कोई गलती नहीं है. और दूसरा चीज, जो लोग एकदम साइंस बैकग्राउंड से है, जो लोग कॉमर्स नहीं था, जो लोग अभी कॉमर्स शुरू कर रहे हैं सीए के साथ, उन लोग को आसान रहेगा. ठीक है. और जिन लोग का फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं था 11 में, उन लोग को भी आसान रहेगा. जो लोग भूल गए उन लोग को भी आसान होगा. ठीक है. ओके, नाउ डबल एंट्री साइकिल बोलने से पहले जस्ट एक बार फोकस करना और मेरे को याद करके बताना डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या बोलता है. Double entry principle or double entry system is a system of recording transactions wholesomely or not wholesomely, where all transactions are recorded and every transaction has a dual aspect, the receiving and the giving. Okay, so that was double entry. Double entry cycle शुरू होता है. Step one is recording of all transactions. और ये जो पहला बार
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ये ट्रेल शुरू हुआ ट्रांजैक्शन का, और रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस कहां पे होता है? जर्नल। दिस इज व्हाट वी कॉल जर्नल। वी जर्नलाइज, दैट मीन्स वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। So journalize का मतलब होता है to record a transaction in the books, and that is step 1 in the double entry cycle. double entry शुरू होता है एक transaction का, double entry में entry होता है through journal entry, इसलिए journal का नाम भी होता है journal entry. Okay, so step 1 in double entry cycle is the journal. Step 2 in the double entry cycle is posting them into ledger. Posting them to लेजर। ओके, तो स्टेप 1 में अपने रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजैक्शंस को, स्टेप 2 में अपने उसको पोस्ट कर लिए लेजर में, लेजर। और मेरे को बताओ जर्नल, जर्नल का एग्जांपल सर क्या है? जर्नल का एग्जांपल जिन लोग को पता है कि लेट्स से कैश सेल हुआ, कैश सेल का जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो ये जो जर्नल है, ये जर्नल में पहले ये ट्रांजैक्शन कैश सेल्स रिकॉर्ड हो गया। अब लेजर में ये 2 लेजर को हिट करेगा, इट विल हिट 2 लेजर्स। ये एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, इट विल हिट 2 लेजर्स, वन इज द कैश लेजर, कैश अकाउंट, and second is the sales account. 2 ledgers will be hit. ओके, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो डबल एंट्री साइकिल का पार्ट, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, बट डबल एंट्री का एक चेक है, एक चेक है, इज द चेक ऑफ द डबल एंट्री इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, टीबी। और ट्रायल बैलेंस से अपने क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस से अपने पता करते हैं कि ट्रायल बैलेंस से हम लोग पता करते हैं कि जो डेबिट्स है, डबल एंट्री में डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो जितना भी लेजर का डेबिट बैलेंसेस है और जितना भी लेजर्स का क्रेडिट बैलेंसेस है, दोनों मिल रहे कि नहीं, दोनों मिल रहे कि नहीं। और मिल गया मतलब मेरे को तसल्ली है कि बुक्स अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दैट ओनली एंश्योर्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। Okay, so trial balance is nothing but a check, let's write it this way, checking arithmetical accuracy of the books. Trial balance, although trial balance loose leaf में होता है, books of accounts का integral part नहीं है, डेबिट क्रेडिट को impact नहीं करेगा, ये चेक करेगा डेबिट क्रेडिट को, ठीक है? Okay, and step 4, final objective, yeah, one of the most important objectives of doing accounts या accounting is to know the financial results and the financial position of a entity. एक business entity का financial results क्या है और financial position क्या है, ये जानने के लिए हम लोग accounts करते हैं। अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है एक एंटिटी का और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक एंटिटी का, ये जानना। तो सर ये जानते हैं हम लोग कैसे? ये सारा डबल एंट्री में जो है जर्नल लेजर, ओके, एंड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ईयर एंड में जाके पूरा ईयर खत्म हुआ तो ईयर एंड या एक पीरियड एंड में क्या रिजल्ट हुआ, वो रिजल्ट हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। That is financial results. And financial results के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग financial results के साथ financial position भी जानते हैं। ये financial result and position जानने के लिए जो accounts हम लोग prepare करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं final accounts, जिसका part होता है trading, PL and balance sheet. तो सर ये यहाँ पे लिखिए, हाँ ये यहाँ पे लिखा, और इसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स, कलेक्टिवली इसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। तो अल्टीमेटली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में साल भर का जो ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस से अपने सारा डेबिट क्रेडिट जो बैलेंसेस वाला लेजर है, लेजर्स को क्लोजिंग एंट्री देके क्लोज करते हैं, और इससे अपना डबल एंट्री साइकिल पूरा होता है। मेरा जो बातें हैं टेक्निकल वाले,
जो लोग 11-12 में कॉमर्स के हैं और जिन लोग का अकाउंट स्ट्रांग है वो लोग सारा बातें नटशेल में समझ गए, और जो लोग नहीं भी समझे पार्शियली समझे होंगे और इसको पूरा हम लोग समझ पाएंगे जब अपने भी अपना सिलेबस खत्म करेंगे सीए फाउंडेशन का, एकदम स्ट्रांग बन जाएगा अकाउंट्स। ओके, सो दिस is double entry cycle. You can copy it. The first topic is done for the day. Now we will go on to the second topic, which is single entry. Okay, sir. Single entry system. Sir, there are two systems of accounting. One is double entry, one is single entry. Single entry is unscientific, unpopular, and incomplete. Unscientific, unpopular, and incomplete. इसका मतलब क्या है सर? Unscientific, unpopular, and incomplete. इसका मतलब कुछ ऐसा है, and incomplete इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अनसाइंटिफिक है मतलब साइंटिफिक नहीं है तो अनपॉपुलर होगा ही, एंड इनकम्प्लीट है इसीलिए तो अनसाइंटिफिक है। तो देखो, वन थिंग गेट्स दी अनदर। तो सर ऐसे लिखिए ना, अच्छा लगेगा कि पहले इनकम्प्लीट है, फिर अनसाइंटिफिक है इसीलिए, और इसीलिए अनपॉपुलर है। हाँ, तो सर सिंगल एंट्री है क्या, कैसे इसमें रिकॉर्डिंग होता है? जैसे डबल एंट्री में आप स्पष्ट बता दिए, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा पहले जर्नल में, फिर जर्नल एंट्री के बाद लेजर में पोस्टिंग होगा, तो कंप्लीटली सब कुछ डेटा रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो कंप्लीट पिक्चर हम लोग को मिल रहा है, अकाउंट्स का हिसाब कंप्लीट मिल रहा है। बट अगर बात किया जाए सिंगल एंट्री का, सिंगल एंट्री में कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगल एंट्री में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। सो सिंगल एंट्री में only credit transactions and personal accounts are recorded. सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो समझ में आया, और पर्सनल अकाउंट्स मतलब, अच्छा क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा तो क्रेडिटर और डेटर आएगा, तभी तो क्रेडिटर डेटर को पर्सनल अकाउंट्स ही बोलोगे। एंड कैश अकाउंट इज ऑल्सो मेंटेन। तो देखो, कैश अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट ही मेंटेन होता है। तुम इमेजिन करो, सिंगल एंट्री कौन अफोर्ड कर पाएगा? जो डबल एंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएगा, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा दुकान, छोटा सा, तो घर में, हाउस होल्ड में हम लोग जब हिसाब करते हैं, हम लोग क्या डबल एंट्री लगाते हैं, जर्नल मारते हैं? नहीं, हम लोग सिंगल एंट्री यानी कि इनकम्प्लीटली हिसाब रखते हैं। कैश का हिसाब हर कोई करता है दुनिया भर में, तो कैश मेंटेन होगा सिंगल एंट्री में, और कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिससे जो मिलता है और जिसको मेरे से जो मिलेगा वो तो हम लोग हिसाब रखते ही है। तो सिंगल एंट्री इज मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, एंड सिंगल एंट्री इसलिए पूरा साइंटिफिक नहीं है, इनकम्प्लीट है एंड अनपॉपुलर भी है बिजनेस। क्लियर है? सो दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड कैश ट्रांजैक्शंस। ओके सर, नाउ सेकंड टॉपिक इज आल्सो ओवर। यस, मैं येलो मार्क करते जा रहा हूं जो टॉपिक ओवर हो रहा है। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो बताइए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में मैं दो ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग को आज ही बताया, अभी डबल एंट्री पढ़ाते वक्त और सिंगल एंट्री पढ़ाते वक्त। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में आई हैव सेड the first objective is to get the financial results. एक बिजनेस करके, एक अकाउंटिंग पीरियड में एक बिजनेस करके क्या रिजल्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुनाफा हुआ, घाटा हुआ, तो ये कैसे जाने? ये अकाउंट्स करके ही तो जानेंगे। तो अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, टू एनेबल द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये नंबर 1 है। एंड नंबर 2 है क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये दो मेन है। फिर और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आइए बुक से एक बार देखते हैं। ओके, लेट अस सी फ्रॉम द बुक, वी हैवंट रेफर्ड टू द बुक येट। ऑफ कोर्स सर ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका स्ट्रांग है वही प्रैक्टिकल समझ पाएगा और समझ के कर पाएगा, नहीं तो वो रट के कर दे। ठीक है, ओके सर ये यूनिट 1 में आप दिखा रहे थे ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, यही मैं बोला फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हाँ, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके सर, ये हाँ अच्छा बोलो, आज
अगर कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स देखे उसको क्या कहोगे? यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो हम लोग पढ़ेंगे कौन यूजर्स है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स को जो यूजर है वो डिसीजन लेगा, इसीलिए इंफॉर्मेशन यूज करके डिसीजन लेगा, इसीलिए इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंट्स बहुत इंफॉर्मेशन देगा, ये और एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। एंड लास्टली टू नो द बिजनेस पोजीशन, यानी कि सॉल्वेंसी पोजीशन, बिजनेस टिक पाएगा कि नहीं। तो ये सारे है अपना ऑब्जेक्टिव। तो 3 और ऑब्जेक्टिव है सर बुक में। हाँ, एक है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग से बहुत सारा समस्या समाधान होगा। ओके, नंबर 4 है to provide information to users for rational decision making. And lastly, last but not least, what will be it? To know the solvency position. To know the solvency position मतलब business चल पाएगा कि नहीं। To know the solvency position. Okay sir, these are objectives of accounts. Okay sir, सर तो तीसरा टॉपिक आज का खत्म हो गया। हाँ ठीक है, I am showing that how quickly we can do things when needed. Okay, all right sir, branches of accounting. हाँ, branches of accounting आज का आखिरी टॉपिक है as planned. and ये क्या है सर, थोड़ा दिखाइए। Okay, branches of accounting, तीन branches होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में there are 3 branches. Okay, क्या क्या सर, पूरा बता रहा हूं। नंबर वन क्या है सर? नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंट। सर हम लोग जो अकाउंट कर रहे हैं अभी, जो सीए में ये प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पेपर 1 ऑफ सीए फाउंडेशन, ये क्या अकाउंट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं जो डबल एंट्री सिखा रहा हूँ ये किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को रिकॉर्ड करना। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब सर, ट्रांजैक्शन घट गया उसके बाद रिकॉर्ड हो रहा है या पहले? उसके बाद। ट्रांजैक्शन एंटर किए, हो गया, उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, हिस्ट्री का रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मिलेगा। तो अपने जो अभी ऊपर में बात की है वो कौन सा अकाउंटिंग था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा तरह का अकाउंटिंग जो होता है उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हायर लेवल में सीएमए और बीकॉम में रहेगा एज अ सब्जेक्ट। और सीएमए जो कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यही है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है ये भी हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करता है, बट ये डेटा बोले तो सिर्फ डेटा नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। मतलब जो भी खर्चा मैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विस डिलीवर करने के लिए इंकर कर रहा हूँ, वो कॉस्ट मेरे पास अलग से रिकॉर्ड रहना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कॉस्ट का हिसाब अलग से नहीं हो रहा है ब्रेकअप करके। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग ही टेक्निक है समझने के लिए, एक प्रोडक्ट कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, इंडस्ट्री में क्या कितना हो रहा है, सारा कॉस्ट का रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करके। ओके, एंड थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग और थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज management accounting. Management accounting is nothing but this type of accounting enables or helps in decision making, enables decision making by the entity। यानी कि मैनेजमेंट एंटिटी का डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम है। डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? इनपुट्स लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इनपुट्स लिया, इंफॉर्मेशन लिया, वो इंफॉर्मेशन लेके अपने जो डिसीजन लेगा मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस एंड सर्टेन थिंग्स। सो दैट दोस टेक्निक्स आर देयर इन दिस सब्जेक्ट कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग बाय द एंटिटी। So there are 3 clear branches of accounting. One is financial accounting, जो हम लोग सीखेंगे, जो अपना पेपर में है, जो जिसको अपने अकाउंट्स बोलते हैं synonymously. Okay, cost accounting and management accounting. Okay, last topic for the day ये नहीं था, मैं लिखा नहीं था, वो है users of accounting information।
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आज का आखिरी टॉपिक है और ये जल्दी से देखते हैं क्या है। ओके सर, ओके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके गाइस, टेल मी, ना देख के, ये देखने का जरूरत नहीं, खुद से देखने से भी हो जाता है। बचपन में सब लोग पढ़े हो 11 में, मेरे को पता है। फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग कौन होगा? आप ही बताओ, फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग कौन होगा? खुद से बताओ। मैनेजमेंट सबसे पहले मालिक अकाउंट्स करके खुद ही डिसीजन लेगा। अभी तो बोला, तो मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर ऑफ अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट छोड़ के भी तो इन्वेस्ट जो पैसा किया है बिजनेस में वो भी जानना चाहेगा ना, हिसाब, फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, तो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को, कंपनी का इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। तो जो भी नाम दे दो, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स। ठीक है सर, और कौन जानना चाहेगा? अच्छा बोलो, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी तो इंटरेस्टेड रहेगा। हाँ सर। अच्छा सर, कोई अगर पैसा उधार दे कंपनी को या बिजनेस को, वो बैंक हो, लेंडर हो, कोई भी हो, वो देखना चाहेगा ना हिसाब किताब, फिर उधार देगा ना। हाँ, लेंडर्स। सर बोरोवर भी देख सकता है। हाँ, बोरोवर्स। अच्छा सर, कस्टमर्स, सप्लायर्स। हाँ, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स जो बिजनेस करेगा। सर और कौन देख सकता है? अच्छा बोलो, टैक्स हम लोग किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट देखना चाहेगा ना मैं टैक्स ठीक से दे रहा हूँ कि नहीं, इसलिए बुक्स। हाँ, गवर्नमेंट। सर और कौन हो सकता है? खुद से दिमाग से लाओ। अच्छा बोलो, मैं स्टूडेंट हूँ, रिसर्चर हूँ, मार्केट रिसर्च करता हूँ, इक्विटी रिसर्च, ये सब टर्म सुने हो। तो मैं स्टूडेंट रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर भी अपना रिसर्च करने के लिए कोई भी कंपनी का अकाउंट्स रिसर्च ले सकता है, रिसर्चर यूज कर सकता है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, लास्टली सोचो, जो इन्वेस्ट किया नहीं बिजनेस में बट करना चाहता है, इन्वेस्ट किया नहीं जो करना चाहता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ओके, so these are the users of accounting I have explained to you. This concludes our last topic for the day. Your homework is unit 1 of chapter 1 of CA foundation material, जो मैं दिखा दिया सोर्स सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे मिलेगा, सी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में ऑफ कोर्स। एंड वी हैव कवर्ड दिस। इसमें एक दो टॉपिक है जो मैं बोला नहीं अलग से, रिलेशनशिप विद अकाउंट्स ऑफ विद अदर फील्ड्स, फंक्शंस ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा, वो खुद से देखना अच्छे से। और पूरा यूनिट हम लोग खत्म कर लिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। थैंक्स अ लॉट।